Hello everyone, greetings of the day. I'm Nitin Mathur and today we will learn the basic difference between functions and formulas in MS Excel. Right now, so what is the basic difference between formula and function? Right? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है हमें कई बार कि यार फॉर्मूला क्या चीज़ होती है और फंक्शन क्या चीज़ होती है और कई बार हम लोग हर चीज़ को चाहे हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं चाहे हम कुछ भी वर्कआउट कर रहे हैं हर चीज़ को फॉर्मूला डिफाइन कर देते हैं इट्स अ फॉर्मूला बट there is a basic difference between formula and a function, right? So what is that difference? The difference is that functions are predefined. Functions are predefined and formulas are always user defined. The working of the functions is predefined कि वर्कआउट जो होगा जितना भी वर्कआउट परफॉर्म करना है फंक्शन की एक स्पेसिफिक टास्क है जब भी हम फंक्शन को यूज करेंगे वो फंक्शन अपने उसी टास्क को परफॉर्म करेगा उसके अलावा फंक्शन कुछ परफॉर्म नहीं करेगा इफ द फंक्शन रिक्वायर्ड सम वैल्यू देन वी हैव टू प्रोवाइड दैट वैल्यू टू द फंक्शन टू परफॉर्म द टास्क ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू बट formula user defined and user has to write the formula to perform the certain task, right? Whenever we write the expression in Excel, right? So the particular expression involves either a function or a formula or a mix, both, right? The function is also there and formula is also there in that particular expression. When we perform any kind of a calculation or a manipulation in Excel, so that is called a expression, right? So that particular expression can have function, formula or both, right? Now, so when we talk about the functions, first we will talk about the functions. So functions are predefined, right? As I told you, functions are predefined and the working of the functions are predefined. We cannot make any changes in the working of the function. We cannot make any changes in the working of the function, right? In Excel, we can create our own functions also. In Excel, we can create our own functions also, but for that we require a VBA, the Visual Basic for Applications, to create those functions, right? So that's a different part altogether. So we'll talk about that thing in later videos, right? Now, in this video, we will talk about the functions. So let me open the Excel and then I'll show you the working of functions first, right? So let me start my Excel. Now, my Excel is started. So this is my first screen in Excel. This is my sheet, right? And sheet is a collection of several cells, right? And cell is the intersection of rows and columns. Cell is a intersection of rows and columns, right? And each and every cell is identified by a particular name. Each and every cell is identified by a particular name, and that name is also known as the cell address, right? And which is we can say the combination of column header and a row number. Column header and a row number. For example, this is my first cell in Excel sheet. So this is named as A1. This is the name of the cell or this is the address of the cell. So I can identify this cell in a function or in a formula, right? If I am using a function or a formula and I want to represent a particular cell to perform the certain task, right? So I can identify that particular cell, a value stored on that particular cell using its address, right? Now, so first we will talk about the functions. So I'm using actually Mac version of MS Excel, right? So maybe some differences are there, viewing differences are there only, right? But conceptual and logical differences are not there, right? So some viewing differences are there. So this is my formula tab and this is the function. To insert a function. So in Excel, there are lots of functions and all the functions are categorized. All the functions are categorized. Functions are divided into several categories. जितने भी functions हैं हमारे Excel में वो सारे के सारे functions को अलग अलग categories में divide किया गया है. The very first category is database. Database related functions,
राइट कि अगर हम इसको एज ए डेटाबेस वर्कआउट कर रहे हैं और डेटाबेस रिलेटेड हमें वर्किंग परफॉर्म करनी है, एक्सेल को डेटाबेस की तरह यूज करते हैं कि हम ऐसा बैक एंड यूज कर रहे हैं, फ्रंट एंड में प्रोग्रामिंग के थ्रू वर्कआउट कर रहे हैं, वी कैन यूज इट। तो दीज आर द फंक्शंस फॉर दैट, डेट एंड टाइम फंक्शंस, राइट कि आई वांट टू प्रिंट अ डेट, आई वांट टू मैनिपुलेट डेट्स, राइट। तो फॉर दैट these are the functions to manipulate the date, right? Date manipulation functions are there. So this category is date and time category. Engineering functions, right? So these are some engineering functions कि इंजीनियरिंग में कौन कौन से फंक्शंस हमारे यूज हो रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस की फाइनेंशियल वर्कआउट के लिए जितने भी फंक्शंस की हमें रिक्वायरमेंट है, राइट हमें लोन के लिए वर्कआउट करना होता है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट तो उसके लिए और बाकी से जितने भी फाइनेंशियल फंक्शंस अवेलेबल है, वर्किंग जितनी भी होती है उसके सबके लिए फंक्शंस उसमें अवेलेबल है हमारे पास, राइट। नाउ इंफॉर्मेशन रिलेटेड फंक्शंस कि अगर मुझे सेल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एंड मुझे चेक करना है कि सेल एम्प्टी है या सेल पे अगर कोई एरर है, राइट तो उस टाइप के वर्कआउट्स परफॉर्म करने के लिए हम लोगों के पास फंक्शंस हैं, दैट इज इंफॉर्मेशनल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस, राइट टू these functions are used to combine basically conditions, right कि अगर हम आगे conditions वगैरह यूज करते हैं, some functions are there to combine the conditions to make a conditions, जैसे if है, right is a if function, this is for conditional workout कि if I want to perform some task and I want to display some message or want to calculate something but conditionally, right so and I can use this if function, right। now next is lookup and references, right कि वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सेल्स की वैल्यूज अलग अलग वे में हमें वर्कआउट करना है, राइट तो इसमें से हमारे पास लुकअप फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एच लुकअप, वी लुकअप, मैच, राइट तो दीज आर द फंक्शन। एक मैट्रिसेस में ट्रांसपोज होता है हमारे पास, तो ट्रांसपोज के लिए फंक्शन है, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस, तो इनकी वर्किंग जितने भी ये कैटेगराइज फंक्शंस हैं, राइट in सबकी working predefined है, we don't need to do anything, we just need to provide the values to perform the certain task, right। now maths related functions कि जो भी हमें absolute values चाहिए, cos theta find out करना है, tan theta find out करना है, gcd find out करना है, right floor ceiling whatever you want to find out, pi की value आपको required है, random आपको workout perform करना है, random number generate करना है, whatever you want, right everything is there, so all these things are predefined, right। statistical functions, right एवरेज फाइंड आउट करनी है आपको, कुछ काउंट करना है, राइट तो मिनिमम फाइंड आउट करना है, मीन मीडियन मोड व्हाटएवर यू वांट टू फाइंड आउट, राइट तो ऑल दोज थिंग्स आर कैन बी परफॉर्म थ्रू दीज फंक्शंस, दीज आर टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस, राइट कि आपको टेक्स्ट में कुछ फाइंड आउट करना है, उसके लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, मिडिल से एक्सट्रैक्ट करने हैं, राइट से आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, राइट तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस, राइट तो ऑल दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस, राइट कि दीज आर प्री डिफाइंड, we cannot make any changes in these functions but we can use these functions, right। and now the very major thing, whenever we use any expression in Excel, so all the expressions are starts with equals to sign, right। अगर हम equals to sign नहीं लगाएंगे और कोई भी expression अगर हम यहाँ पे mention करते हैं तो वो expression evaluate नहीं होगा, वो expression evaluate नहीं होगा अगर हम विदाउट इक्वल्स टू साइन वर्कआउट करेंगे। तो किसी भी एक्सप्रेशन को, चाहे वो फंक्शन बेस्ड एक्सप्रेशन है, हमारा फॉर्मूला बेस्ड एक्सप्रेशन है, या वो हमारा कंबाइंड एक्सप्रेशन है इसमें फॉर्मूला और फंक्शन दोनों वर्कआउट कर रहे हैं हमारे, राइट तो चाहे वो कंबाइंड एक्सप्रेशन है चाहे वो कुछ भी है, किसी भी एक्सप्रेशन को वर्कआउट करने के लिए हमें इक्वल्स टू का सिंबल मैंडेटरी होता है, तो वहां पे हमें इक्वल्स टू का सिंबल लगा के ही एक्सप्रेशन स्टार्ट करना होता है, राइट तो मैं पहले सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं फंक्शन और फॉर्मूला के बीच में, राइट फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज आई हैव वैल्यू हियर 45, 56, right and I want to find out the sum of these values, right then what should I do, then I can easily use the sum function, right so I can write the function here
equals to sum, right? And now, and I'll select this range. This is called the range of values, कि which values I want, right? तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी तो वो सेल एड्रेसेस कि कहां से कहां तक वैल्यू हमें चाहिए, B3, द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम B3, राइट? एंड कोलन, कोलन मींस कि कहां से रेंज, कोलन कोलन डिफाइन करता है द रेंज कि किस सेल से किस सेल तक की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है. लेकिन जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी गिव द रेंज देन रेंज मस्ट बी इन अ सीक्वेंस, राइट? रेंज हमारी गैपिंग में नहीं हो सकती. रेंज की एक सीक्वेंस होगी जिसमें रोज एंड कॉलम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, एक सिंगल रो हो सकती है, एक सिंगल कॉलम हो सकता है, कुछ सेट ऑफ सेल्स हो सकते हैं, लेकिन रो एंड कॉलम दोनों में वर्किंग होगी, लेकिन वो दोनों सीक्वेंस में होंगे, गैपिंग पे नहीं हो सकता. ठीक है, इस तरीके से हम सेलेक्ट करके गैपिंग नहीं दे सकते. लेकिन अगर हमें गैपिंग देनी है तो हम किस तरीके से दे सकते हैं, दैट आई विल शो यू. सम, तो इसने ऑटोमेटिकली इसने सम कैलकुलेट कर दिया हमें, राइट? से सपोज यहां पे कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, these are the values, right? And similarly I want to calculate the sum, equals to sum these values, right? So these are the sums of these values, right? Now अगर मुझे अलग अलग चाहिए, इंटरवल में सेल्स रिक्वायर्ड है, मेरे पास रेंज नहीं है, वो फिर रेंज नहीं बनेगी, right? That will not a range. For example, here equals to sum this cell. Now press the control key, this one and this one, right? कंट्रोल की हमने प्रेस करी और हमने इंडिविजुअल सेल्स को सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, नाउ तो देखिए इन सब का डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहा है. जितने डिफरेंट सेल्स आप सिलेक्ट करेंगे हर एक का एक डिफरेंट कलर आएगा, ताकि आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो कि इस एक्सप्रेशन में जितने भी सेल्स हमने यूज किए हैं कौन कौन से सेल्स हैं, अब वो कहां कहां पर अवेलेबल है, राइट? तो ये रेफरेंस के लिए होता है, दीज आर द सेल रेफरेंसेस, राइट? नाउ तो 199 is a total of these different cell values, right? Now one more thing, equals to sum these three values. Now press the control key and these three values. So these two different ranges, these are two different ranges. ये मेरी दो अलग अलग ranges बन गई, right? अब इन दो रेंजेस का वो सम कैलकुलेट करके आपको देगा. दीज आर टू डिफरेंट रेंजेस, राइट? बट जब भी आप रेंज देंगे वो रेंज में गैपिंग नहीं हो सकती. अगर आप गैपिंग देंगे तो वो इंडिविजुअल बन जाएगा. आइदर यू कैन यूज डिफरेंट रेंजेस, इंडिविजुअल रेंजेस और इंडिविजुअल सेल्स, राइट, इन योर एक्सप्रेशन, राइट? So this is my function. Now say suppose I want to calculate the average. I want to calculate the average. Then what should I do? I can use equals to average function. I can use the average function here and these values. Select these values. So it will show me the average from F3 to F7, right? उसने मुझे average show कर दी 55. Now similarly what can I do is equals to this one divided by 5. This is my formula, right? आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एवरेज फंक्शन यूज नहीं किया, मैंने क्या किया, इज इक्वल्स टू F8. F8 सेल पे जो वैल्यू है उसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया. दिस इज माय रिक्वायरमेंट,
दिस इज माई रिक्वायरमेंट, राइट। तो इसके लिए कोई फंक्शन कहीं अवेलेबल नहीं है, राइट, कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इसे 5 से नहीं करना था डिवाइड, अगर मैं इसको 3 से करता देन, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिलहाल तो यहाँ पे दोनों बोथ ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, कि भाई अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ और मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं, अगर हम ये मान लें कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और ये आउट ऑफ 100 है, तो डिवाइडेड बाय 5 किया, दैट मीन्स कि हमने 500 से वर्कआउट किया, तो 55 आंसर आ गया हमारा, एवरेज 55 आ गई। लेकिन अगर यहाँ पे मार्क्स अलग होते, राइट, अगर ये मार्क्स हमारे 120 में से होते या 150 में से होते, देन तब हमारे पास ये एवरेज वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि एवरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय 100, कि आउट ऑफ 100 ये मार्क्स हैं, राइट। नाउ तो फर्स्ट लेट मी create one sheet, right, then I'll tell you the exact way to place the formulas in a sheet, right. So let me create the sheet first. Now my sheet is ready, employee salary sheet is ready. Now we'll work on it. Now the very first thing, what is formula and what is function? Again, तो हम कैसे इसमें फार्मूलाज कहाँ यूज़ करेंगे और हम इसमें फंक्शंस कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे हमें फार्मूलाज वर्कआउट करने, कैसे हमें फंक्शंस वर्कआउट करने। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस अभी हम लोगों ने बात करी कि व्हाट एग्जैक्टली मीन इज फंक्शन एंड व्हाट एग्जैक्टली मीन इज फार्मूला, तो हमें यहाँ पे ये वर्कआउट करना है कि कहाँ हमारा फंक्शन प्लेस हो सकता है, कहाँ हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और कहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एच आर ए के लिए हाउस रेंट अलाउंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमारे पास एक परसेंटेज गिवन है, राइट। तो अगर कहीं परसेंटेज गिवन है, कुछ ऐसा वर्कआउट गिवन है, कोई फॉर्मूला अगर हमारे पास गिवन है, जिस फॉर्मूला के बेसिस पर हमें एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, और वो जो फॉर्मूला है वो यूज़र पे डिपेंड करता है, या वो वैल्यू यूज़र पे डिपेंड करती है कि क्या वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए हम जनरली फंक्शन को ना यूज़ करके फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। तो फंक्शन उन चीज़ों के लिए, यानी कि वो मेथड्स जो प्री डिफाइंड कॉन्सेप्चुअल डिफाइंड हैं हमारे पास, राइट, चाहे वो मैथमेटिकल फंक्शंस हो, चाहे वो आपके स्टैट्स के फंक्शंस हो, राइट। तो वो सारे के सारे क्या कैरेक्टर बेस्ड फंक्शंस हो, डेट एंड टाइम से रिलेटेड हो, कि हमें डेट्स को ऐड करना है, डेट्स को मॉडिफाई करना है, वर्कआउट करना है, डेट्स के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है, राइट। तो वो सारी की सारी चीज़ें प्री डिफाइंड अगर हैं, कहीं कोई चीज़ फिक्स्ड है, पहले से पता है कि हाँ इसके लिए ये वर्कआउट यूज़ होता है। कुछ स्टैटिकल फंक्शंस होते हैं, स्टैट्स हैं, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आपको साइन थीटा टेन थीटा मैथ्स में फाइंड आउट करना है, वर्कआउट परफॉर्म करना है, कुछ कंडीशंस इसमें लगानी है, राइट, कुछ काउंटिंग आपको करनी है कि भाई कितने सेल्स इसमें फिल्ड हैं, कितने ब्लैंक हैं। तो जो चीज़ें फिक्स्ड हो सकती हैं उनके लिए तो हम हमारे फंक्शंस इसमें प्री डिफाइंड है, बट formulas are not predefined, formulas we have to create, right. So the very first thing here, कि for to calculate HRA on the salary, so suppose HRA is 43.45% of basic salary, right. तो that is कि भाई अब 43.45% या जितना भी हमारे पास है, जो भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वो वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे देके कैलकुलेट करना है बेटा, देन व्हाट शुड वी डू। तो formula and a function in Excel, formula and a function both starts with equals to symbol, both starts with equals to symbol। अगर हम इक्वल्स टू सिंबल यूज नहीं करेंगे तो हमारा फंक्शन या फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो वर्कआउट नहीं करेगा। एक्सेल उसको एक नॉर्मल वैल्यू की तरह कंसीडर करेगा, नॉर्मल डेटा कंसीडर करेगा, और एज इट इज उस डेटा को डिस्प्ले कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आई शो यू, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो से सपोज कोई भी वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, सपोज 67 डिवाइडेड बाय 23, तो इट विल शो इट लाइक दिस कि 67/23,
फ्रैक्शनल वैल्यूज ने यहाँ पे शो कर दी भाई 67/23, लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करना है देन व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू प्लेस द इक्वल्स टू साइन हियर, I have to use the equals to sign here, then it will calculate the value, right? So equals to sign is used to calculate the expression. An expression is a combination of function and a formula, right? Or individual function or individual formula, right? So expression could be anything. एक्सप्रेशन होगा बट वो हमारे पास सिंपल फंक्शन हो सकता है, एक सिंपल फार्मूला हो सकता है, यूजर डिफाइंड फार्मूला जो हम डिफाइन कर रहे हैं, या फिर वो फंक्शन और फार्मूला का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन, हाउ फंक्शन इन्वॉल्व विद द फार्मूला। आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स कंबाइंड हियर। तो दोनों चीज़ें वो यहाँ पे कंबाइन करके हमारे लिए वर्कआउट कर सकते हैं। तो कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं वैल्यूएशन के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, हम कुछ भी यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसके लिए वी हैव टू यूज इक्वल्स टू सिंबल अंटिल एंड अनलेस वी गिव द इक्वल्स टू साइन, इट विल नॉट कैलकुलेट एनीथिंग। एक्सेल में जब तक हम इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं करेंगे तब तक कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होंगे, राइट? तो वी हैव टू यूज द कैलकुलेट, to calculate the values we have to use the equals to sign in Excel, right? Now to calculate HRA, the HRA, what should I do? I have to use the equals to sign and I have to give the reference of this particular cell, in which cell I have the salary, and then I have to multiply it with the value, right? With the percentage, how much percentage I required, suppose into 43.26, चलो 4326. now so this is the result, right? that means कि 43.46% of the salary is the HRA. and now just fill it, and now DA, right? so this is the formula. This is user defined formula कि I want to multiply the value of E3 cell with the 0.4326, that is 43.26%, right? So my requirement is to calculate 43.26% of salary, right? So this is the formula, right? So for DA I have to use a similar kind of a formula, same formula I have to use, thus the changes in a percentage, how much percentage I need. Now the gross salary, I want to calculate the sum of all these values, right? मुझे इनमें से कुछ values का sum चाहिए gross salary calculate करने के लिए। तो to calculate the gross salary, right, what I'll use now, I will use the function, the predefined function, to sum the values. So that is equals to sum. This is the list of functions which I can use, right? This is the list of functions. So sum. Now I'll select these values to calculate the sum. Now this is the sum of these values. And deductions, what are deductions? IT plus PF, then equals to sum IT plus PF. So this is my deduction, these are my deductions. Now and the net salary is equals to gross salary minus deductions. And now to sum is a function and rest are formulas. So this is the sheet which mainly belongs to the formulas, यानी कि इस शीट में मेनली हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फॉर्मूलाज हमने यूज करे, हमने फंक्शंस यूज नहीं करे,
राइट. फंक्शन हमने सिर्फ एक ही यूज किया, दैट इज सम. राइट. तो प्री डिफाइंड फंक्शंस जितने भी हैं हमारे पास, हम जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस एक्सेल में डिफाइंड है, लिस्ट ऑफ, देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल. राइट. तो वी कैन यूज ऑल दोस फंक्शंस, बट remember this thing कि functions are always predefined and formulas are always user defined. तो any calculation which is totally based on the user's requirement, then we have to use a formula. हर एक चीज के लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल नहीं हो सकते. राइट. फंक्शन हमेशा उन चीज़ों के लिए अवेलेबल होंगे जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, जो डिफाइंड है. राइट. जिनके फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट हमारे पहले से अवेलेबल हैं, उन चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं. अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि सम के लिए तो हमारे पास फंक्शन है कि वी कैन ऐड मल्टीपल वैल्यूज, बट वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट मल्टीपल वैल्यूज. राइट. तो उसके लिए हमारे पास एज सच फंक्शन नहीं है. उसके लिए हमारे पास एज सच फंक्शन अवेलेबल नहीं होते कि हम कहीं पे स्पेसिफिकली फंक्शंस यूज कर रहे हैं. राइट. प्रोडक्ट के लिए फंक्शंस होते हैं कि प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट डिवीजन. राइट. तो उन चीजों के लिए हम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते. मतलब जो चीजें लॉजिकली कॉन्सेप्ट डिफाइंड है, कॉन्सेप्चुअली डिफाइंड है, उन सब चीजों के लिए फंक्शंस अवेलेबल होंगे. लेकिन जो चीजें लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअली डिफाइंड नहीं है, दोज आर टोटली बेस्ड ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट. राइट. तो उसके लिए हमें फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं. अब सपोज यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यूज को डिटेक्ट करना है, देन व्हाट शुड आई डू. राइट. तो उन वैल्यूज को डिटेक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए, आई हैव टू यूज द सेपरेट सेपरेट वर्कआउट्स. राइट. डिवीजन के लिए अलग अलग वर्कआउट्स करने पड़ते हैं. ठीक है. तो बट हाँ, कुछ हर बार नए नए वर्जन्स में कुछ फंक्शंस ऐड हो जाते हैं, कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो और ऐड हो जाती हैं. तो दोज फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज are added there. Right. Hope you understand the concept of functions and formula and the basic difference between functions and formulas. Thank you.